Respected Father Manager, Sister Principal, teachers and all my dear students. I welcome all of you for being present on this beautiful occasion of Children's Day. As you all know, Children's Day is celebrated on 14th November every year. As you all agree that children are bright sunlight, a plant seed that will nurture the future of our country. On this occasion, I would be happy to tell why the birth anniversary of Pandit Nehru is celebrated as Children's Day.
The UN General Assembly has been declared officially to celebrate Children's Day every year. Yet, it is celebrated on 14 November throughout India on Jawaharlal Nehru's birth anniversary. This is the main historical background behind Children's Day. Children are liked by everyone because they conquer our hearts with their beautiful eyes, innocent activities, and smile. One of the well-known Brazilian novelists, Paulo Coelho, said about children that a child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to be always busy with something, and know how to demand with all his might what you want. There is an incident in Holy Bible also that shows the concern of Jesus Christ towards children. People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples stopped them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me and do not stop them, for the kingdom of God belongs to such as this." And he took the children in his arms and placed his hands on them and blessed them. Let us all celebrate the innocence and purity of our kids. Let them feel precious in every way that we can, because they are our future. So on this special day of yours, dear children, we teachers collectively wish you a happy Children's Day and pray to God that you will be achieve your dreams. Thank you. Respected principal, dear teachers, parents, and my dear students, a very warm good morning to each one of you, and a very happy Children's Day to all our Marian students. Today, my prayer for you is that each of you reaches the fullness of life, achieve your dream, and make a mark in the world as a member of the Marian family. Let me start by saying a big thanks to you, dear principal and teachers, for making this day a memorable to our students by the virtual presentation of the Children's Day program. I also thank the parents for a unique contribution in forming your child in collaboration with the school management. Be assured that you are always part of this Marian family, even at this time when the whole world is affected by COVID-19 pandemic. My dear students, it's the age of WhatsApp and networking. Let me share a message I received a few days ago. A child is like a butterfly in the wind. Some can fly higher than others, but each one flies the best it can. Why compare one against the other? Each one is different, each one is special, and each one is beautiful. Yes, friends. Believe that each and every one of you is precious gift of God. Each of you is unique, having some God-given talents and abilities to fly higher and higher. You have the possibility of becoming someone special in future. Maybe an upright IAS, IES or IPS officer, or maybe a dedicated teacher, scientist, doctor, or an engineer. Always ask this question to oneself: if he and she could, why can't I? I'm also reminded of the motivating words of Senator Kamala D. Harris of California, who becomes the first woman ever elected as Vice President of the United States of America. While addressing a large gathering of the supporters, she said, "While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
because every little child watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with an ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they have never seen it before, but know that we will applaud you every step of the way. My dear students, go forth and embrace your future with open arms and pursue your goal of discovery. Render dedicated service to humanity and live a happy and peaceful life. I wish you all the very best in life. Stay connected, stay blessed. Thank you. God bless you all. सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद को हमने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी और ना चढ़ी। लिख कर पढ़ा, दिल्ली बनाया, अबीता गाँव छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला रहा। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
My dear children, today is Children's Day, a day dedicated to you. For me, it is also a day dedicated to love. I believe every child, every one of you brings more love to this world. When I see you, my heart dilates with pride, love, and joy. In your shining faces, I see hope, I see a brighter tomorrow. In your radiant eyes, I see the promise of what you will achieve. My dreams is to see your dream come true. I long for the day your achievements will celebrate by all of us. Make us proud, make your parents, your teachers, your school and the nation will proud. I will be waiting with greater pleasure to see you all make your mark on the world. My heartfelt love to all of you. Happy Teachers' Day. Morning students and a very happy Children's Day to all of you. I am Pooja Tiwari. Welcome to you all to the Children's Day program of our school. First of all, I would like to express how happy I am to be with you this morning. Today I want to share something with you, all which you can consider as a piece of advice. When I am mentioning the teenagers, what is your first thought about them? Is it money, freedom, time, travel, hang out, and so on? Nowadays, teenagers have changed a lot compared to teens in the past, such as their eating habits, spending free time, and clothes, etc. etc. For school students, it is fun and fashion to zip on a high-powered motorbike to school for their status. Aware parents, it is a matter of pride. But little do they realize that it is a tragedy waiting to happen. So today our teachers are going to present a small skit in front of you all. This skit is based on real story of a 15-year-old boy. He was eager to ride the motorbike. His father has a 150cc bike and he requested him for the keys of bike so that he could meet his friends at a nearby playground and learn to ride. So students, do you want to know what happened to the boy after that? Of course yes. So here present skit by all your loving teachers. भैया डॉक्टर साहब भैया मेरे भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर है डॉक्टर साहब? मैम डॉक्टर अभी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। अरे कैसा हॉस्पिटल है आपका? वहाँ मेरे भाई की खून की एक एक बूंद के साथ उसकी जिंदगी खत्म हो रही है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बाहर गए हैं। कोई और डॉक्टर को लेके आओ, कोई और डॉक्टर को लेके आओ, मैं कह रही हूँ। अरे मैम सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर है, ओनली मिसेस सिंह ही है जो अभी आती ही होंगी। अरे ये लो, ये भी लो। मैं कह रही हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें मैं दूंगी, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैम बात पैसों की नहीं है। अरे आप फोन लगाओ डॉक्टर को। जी मैम। हेलो डॉक्टर साहब। अरे आप फोन मुझे दीजिए। हेलो डॉक्टर, कहाँ पर हैं आप? मेरे भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज डॉक्टर आप जल्दी आइए, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भैया आप तो आना चाहिए कम से कम। आ गए आप? अंदर पेशेंट मरे जा रहा है और दुनिया भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है कि नहीं? प्लीज मैम आप मेरी बात तो सुनिए।
अभी भी आप मुझे सिर्फ बात ही सुनाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे भाई की जान खतरे में है और आप अभी भी मुझे एक्सक्यूजेस ही दे रहे हैं। मैम, यहाँ आए हर पेशेंट की जान खतरे में ही है, लेकिन उनके घर वाले आपकी तरह चिल्ला नहीं रहे हैं। मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, अभी भी आप सिर्फ कोशिश ही करेंगी। मेरे पापा आप सबको पैसों में तोल देंगे। मेरे भैया की जान बच जानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, मेरे भैया की जान बच जानी चाहिए। मैडम, पैसे देकर आप किसी की जान नहीं खरीद सकती हैं। फिलहाल आपके गुस्से से ज्यादा आपके भाई को मेरी जरूरत है। आप जितना लेट करेंगी मेरे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मैम, मुझे ऑपरेशन करने दीजिए। डॉक्टर, कैसा है मेरा भाई? मार डाला ना आपने मेरे भाई को। देख लिया ना बेटा क्या जैसा मरा नहीं है मेरा भाई। हत्या की है इस हॉस्पिटल में, उसकी हत्या की है। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम सबको। क्या बर्बाद करेंगी आप? नहीं बताइए, क्या बर्बाद करेंगी आप? आपने तो मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया है। आपका भाई जिंदा है, बच गया है आपका भाई। समझी आप? बच गया है आपका भाई। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? आपका भाई तो होश में आ जाएगा मैडम, लेकिन मेरा बेटा आप कभी होश में नहीं आएगा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। जिस भाई के लिए आप मुझे मारने की बात कर रही थी ना, आपके उसी भाई ने नशे की हालत में एक्सीडेंट करके मेरे बच्चे की जान ली है। आपका भाई तो बच गया मैडम, लेकिन मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया, तो देखा आपने, जरा सी असावधानी एक अवयस्क बालक द्वारा नशे की हालत में गाड़ी चलाना कितना घातक सिद्ध कर सकता है। किस तरह से दो हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। यह नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इस नाटक के माध्यम से मरिया विद्या सदन के सभी प्रतिभागी शिक्षिकाएं अभिभावकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि अपने नाबालिग बच्चों को प्रेमवश या बच्चों की जिद से विवश होकर वाहन चलाने की अनुमति ना दें। यह दंडनीय अपराध तो है ही, साथ ही अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो इससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। मैं मरिया विद्या सदन के समस्त स्टाफ की ओर से सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और सभी अभिभावकों से आग्रह करती हूँ कि वे अपने बच्चों को मोटर कार दें या ना दें, पर अच्छे संस्कार अवश्य दें जो उनके जीवन को प्रकाशमान करें। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं आप सबसे कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। सामाजिक दूरी ना बना के शारीरिक दूरी बनाएं। जब भीड़ इकट्ठा ना करें और जब भी अगर आवश्यक हो तो मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, लेकिन अपनी भावनाओं को ना मरने दें, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उससे दुर्व्यवहार की अपेक्षा से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सिर्फ शारीरिक दूरी बनाएं, सामाजिक दूरी ना बनाएं। धन्यवाद। अब मैं सारिका उपाध्याय, मरिया विद्या सदन शिक्षिका, आप सभी से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मरिया विद्या सदन परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामना और उज्जवल
भविष्य की कामना करते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमान ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमान वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको छूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको छूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू होठों में प्यार। बंदा एक खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। मगर ये तो ईश्वर स्वरूप बच्चों, परम सम्माननीय मैनेजर फादर, शक्ति स्वरूपा प्रिंसिपल सिस्टर, करुणा दया की प्रतिमूर्ति हमारी सिस्टर द्वय और परम आदरणीय सम्माननीय मेरे साथी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक आत्मीय शुभकामनाएं।
और साथ ही साथ आने वाले 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप से 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का कारण है कि 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा कानून स्वीकार किया गया था। भारत से बाल दिवस का गहरा संबंध है। बाल अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले विदिशा के हमारे कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार बाल अधिकारों के सम्मान के लिए ही प्रदान किया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से कैलाश सत्यार्थी के साथ ही सम्मानित किया गया था। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदऊ वाल रूप सोई राम। उनका कहना है कि ईश्वर की भक्ति करने से हमें जो संतुष्टि मिलती है, जो मन में श्रद्धा विश्वास जगता है, वही किसी बच्चे को देखने पर हमारे मन में संतुष्टि और श्रद्धा विश्वास की जागृति होती है। प्रसिद्ध शायर वसीभद्र कहते हैं कि घर से मंदिर मस्जिद दूर बहुत है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को मनाया जाए। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद जाने से अच्छा है कि आप किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो मंदिर मस्जिद जाने पर आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, जो धर्म मिलेगा, वही किसी रोते हुए बच्चे को मुस्कुराहट प्रदान कर देने पर मिल जाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, एक गीतकार ने लिखा है, बच्चे मन के सच्चे हैं भगवान की आंखों के तारे। तो बच्चे ईश्वर स्वरूप होते हैं, इसलिए हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। दीपावली पर्व 5 दिवसीय पर्व होता है। इस पर्व का पहला दिवस धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, अर्थात हमें हमारे शरीर को निरोगी रखने की प्रेरणा मिलती है। इसका अगला दिवस है यम चौदस। इस दिन हम अपने तन और मन की निर्मलता के लिए, उसकी सुंदरता के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर दीपावली आती है। इस दिवस हम अपनी आर्थिक सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें हम प्रकृति से जुड़ने और प्रकृति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और फिर अंतिम दिवस भाई दूज होता है। इस दिन भाई और बहन का निर्मल प्यार, निश्चल प्यार एक दूसरे पर न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी को पुनः पुनः बाल दिवस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे
कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल में जो वो दास्ता कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाव में कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो न हो। A warm and graceful morning to our Reverend Father, Father Nidhis, and respected Principal Sister, Sister Vimala, my dear sisters, my colleagues, and my dear students, and everyone gathered here. First of all, I wish you a very happy Children's Day and happy Diwali. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this day celebration happen. I, Tanya, on behalf of Maria Vidya Sadan and the entire fraternity of the institution, first of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success with His blessing and grace. We
we are able to make this event what it was. Next, I want to thank our Reverend Father Nidhis, that today we had an opportunity to hear your thoughts, and they surely be going to encourage our students. A special mention to our respected principal sister, Sister Vimala, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength. Finally, I would like to thank my colleagues for taking time to come here to do this program during this COVID-19 situation and making this event inspiring and joyful with their impressive performances. At last, I want to thank our students who are cooperating with us in this critical situation and for their heart-touching performances. Thank you, everyone. Sing the glory of our alma mater, with joy in our heart and with pride. It's the human excellence that it teaches us all. We